Welcome to Mathematical Point. Please like, subscribe and share video. Hello students. Now today we will discuss about the next topic, that is tangent and normal. Basically in 10th class you have studied about circle, and you also know any line which just touches the circle at a particular point is known as tangent to the circle, and any line which is perpendicular on tangent is known as normal to the tangent, and the point where the line touches the circle is known as point of contact. It was in class 10th and that's only for circle, but in this class it is not necessary that we will take a complete circle. This is the arc, and you know circle is the arc, circle is the complete arc. So I am discuss this tangent on only the part of circle, and that is the curve. So same thing, if a line just touches the circle, the curve at a particular point, this line is known as tangent line, and this point is known as point of contact, and any line perpendicular on this tangent is known as normal line. So in this unit we will discuss about what is the equation of tangent, equation of normal, and for any line you need slope. So we will also discuss about the slope and condition of orthogonally. If there are two tangents which intersect each other at a particular point on perpendicularly is known as orthogonal lines. So one by one, first of all we have discussed about the slope. So as you know, slope is the angle of inclination of a line. Slope is the tangent of angle of inclination of a line with positive direction of x-axis. Means suppose that this is a coordinate system and this is a curve. So if this line going through, so this angle, if it is alpha or theta, then slope is equal to tan theta. It was in class 11. And suppose if we are not given this theta, and we are suppose मतलब if the we know line is only of this point, मान लो ये पता है कि यहीं तक का लाइन आ रहा है हमारा, तो और इसके ऊपर हमें कोई दो पॉइंट दे रखा है, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं y2 minus y1 upon x2 minus x1. And the third case, if we are given the equation of line, मतलब कि ax plus by plus c is equal to 0, तो इस सिचुएशन में जो m होता है वो माइनस ऑफ a अपॉन b होता है, जिसमें a है आपका कोफिशिएंट ऑफ x एंड b है आपका कोफिशिएंट ऑफ y. और फाइनली जो लास्ट फॉर्मूला होता है स्लोप का वो है dy by dx, जो कि इस क्लास 12th में हम यूज करते हैं. तो स्लोप आपको अगर निकालना है, अगर आपको थीटा दे रखा है तो tan थीटा यूज करोगे, अगर आपको स्लोप पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है तो y2 minus y1 upon x2 minus x1 करोगे, और अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करोगे, और अगर इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है डायरेक्टली तो आप उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो. अगर आपको डिटेल में स्लोप के विषय में पढ़ना है किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा जो है जो 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन का वीडियो है वो आप देख करके और डिटेल में स्लोप के विषय में पढ़ सकते हो. तो यहाँ पर इस क्लास के लिए हमें स्लोप के ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया. उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें स्लोप पता लग गया तो हाउ कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1.
जब आप वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो उसके बाद आपको कुछ पीडीएफ में आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट पूरा एलोग्रिथम वगैरह मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ इसके जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो सब मिल जाएंगे। अब इक्वेशन इसमें क्या है कि पॉइंट होगा हमारा x1 y1 और स्लोप हो गया हमारा m। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में m x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया जिसमें m वही स्लोप है, बस सिर्फ फर्क कितना है कि यहाँ स्लोप को हम m लेते हैं तो यहाँ स्लोप को -1/m लेना पड़ता है। इसके पीछे रीजन यही है कि चूंकि हमने डिस्कस किया कि जो टेंजेंट है उसके ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, और हमने 11th क्लास में डिस्कस किया है कि जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, और जब लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होता है। तो चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो इनका जो स्लोप है, इसका स्लोप m है और दूसरे का स्लोप -1/m है, तो m से m कट करके हमारा -1 आ जाएगा। तो आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें यही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल के विषय में जो रिलेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्लोप ऑफ नॉर्मल या स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों साइड होगा इज इक्वल टू -1 अपॉन में स्लोप ऑफ नॉर्मल। और अगर यहां पर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखते हो तो देयर इज नो इशू, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से आप एक का स्लोप अगर आपको पता है तो दूसरे का स्लोप आप निकाल सकते हो। यहां दो इंपॉर्टेंट चीज और है, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयर स्लोप इज इक्वल टू 0। जैसे मान लो कि ये लाइन है, ये एक्सिस है x, ये हो गया हमारा y, एज यू नो। अगर कोई भी लाइन इस x एक्सिस के पैरेलल है तो वो x एक्सिस से कोई एंगल तो बनाएगा नहीं। अगर x एक्सिस से कोई एंगल नहीं बनाएगा तो उसका स्लोप हो जाएगा 0। इसमें ध्यान से सुनो, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देयर स्लोप इज इक्वल टू 0। और अगर लाइन वो x के बजाय y के पैरेलल है तो y के पैरेलल है तो x के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर x के पैरेलल है तो y के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, y के पैरेलल है तो x के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ आपका स्लोप जो m इक्वल टू tan 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि tan 90 की वैल्यू डिफाइन नहीं होता है तो हम उसको कहते हैं 1/0। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि व्हेन अ लाइन इज परपेंडिकुलर, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस या परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस देन देयर स्लोप इज नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0। नॉट डिफाइंड है, लेकिन जहां यूज करने की बात आएगी वहां पर हम 1/0 लेकर के ही सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन में इसका यूज भी आएगा। तो ये था हमारा जो इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन दिस चैप्टर। तो देखो आपको यहाँ पर तीन चीज मिला, एक पॉइंट स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अगर हम उसकी बात करें y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यहाँ एक तो m है, एक हमारा x1 y1 पॉइंट है और एक हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व है। ये तीन चीजों में से कोई भी दो चीज या को गिवन होगा तो आप तीसरा निकाल करके देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। अगर मान लो कि आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है और स्लोप दे रखी है तो आप पॉइंट निकाल सकते हो, और कर्व की इक्वेशन दे रखी है और पॉइंट दे रखा है तो आप स्लोप निकाल सकते हो। कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, पॉइंट पुट करोगे dy बाय dx में, आपको स्लोप मिल जाएगा। आपको स्लोप दे रखा है और पॉइंट दे रखा है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ आपका टेंजेंट निकल जाएगा। अब जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको एग्जांपल 14 है, इसमें सिंपल पूछा हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। तो आपके सामने कर्व है, उस कर्व की इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दोगे और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको जो x की वैल्यू दे रखी है, आप केवल x की ही वैल्यू चाहिए,
अगर कहीं आपको y की जरूरत भी पड़ती है तो आप x की वैल्यू को पुट करोगे, y अपने आप निकल जाएगा। तो x की वैल्यू को पुट करोगे, y निकल जाएगा। जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पर, आप सीधे सीधे डायरेक्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो और x की वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो इक्वेशन ऑफ जो स्लोप है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल 15 है, उसमें आपको पॉइंट निकालना है, यही मैं बात कर रहा था। यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है और वहां आपको स्लोप भी गिवन है। तो बच्चों कर्व की इक्वेशन मान लो कि आपके सामने है y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 अंडर द रूट और माइनस 1। अब आपको स्लोप की वैल्यू गिवन है तो पहले आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का मतलब हो गया dy बाई dx। रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट और इनटू 4x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो 4 आएगा, 1 का डेरिवेटिव का 0 हो जाएगा। 2 से 2 टू द 4 कट हो गया। 2 अपॉन में 4x माइनस 3 अंडर द रूट आ गया आपका dy बाई dx। लेकिन dy बाई dx को जिसको हम स्लोप करते हैं वो आपको इसमें गिवन है 2/3, यानी कि 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4x माइनस 3 अंडर द रूट। तो स्टूडेंट ये 2 से 2 कट हो जाएगा। अब इसको इक्वेट करके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 होगा। 3 इधर आकर प्लस हो गया, 12 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा और x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। और जैसे आपको x की वैल्यू 3 आ जाएगा, आप इस इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर पुट कर दोगे तो आपको y निकल जाएगा। मैं आपको केवल हिंट दिया हूं क्योंकि सॉल्व करने के लिए तो आपके सामने एग्जांपल में सॉल्व किया ही हुआ है। तो कहने का मतलब है पहला हमारा जो एग्जांपल था जिसमें सीधे सीधे आपको इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन था और x की वैल्यू गिवन था तो आपने टेंजेंट की वैल्यू निकाल दी। दूसरे में आपको इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, टेंजेंट की वैल्यू गिवन है तो आपने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके आपने y निकाल लिया, यानी कि आपको पॉइंट मिल गया। और जो तीसरा टाइप ऑफ आपका क्वेश्चन है वो एग्जांपल है, उसमें यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस having slope and being tangent, यानी कि कहने वाला कि वो लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है जो किसी कर्व का टेंजेंट है और आपको उसकी स्लोप भी गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ कर्व भी गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, उसको डिफरेंशिएट करोगे, स्लोप के साथ इक्वेट करोगे जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था, तो उसके साथ आप डिफरेंस एलिमिनेट करोगे उसको तो आपको x की वैल्यू पहले मिलेगी। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि x की 2 वैल्यू आती है तो देयर इज नो इशू, x की 2 वैल्यू आएगी, y की भी 2 वैल्यू आएगी। मतलब कहने का ये है कि ये हमारा कर्व है, एक हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना होगा, दूसरा हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना होगा। कब इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल दोगे, जो भी कर्व है उसको डिफरेंशिएट करोगे, पॉइंट गिवन है, स्लोप निकलेगा, ऑलरेडी स्लोप गिवन है, पॉइंट के हेल्प से और स्लोप के हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दोगे। फिर सेम प्रोसेस इसके लिए करोगे, दोनों आंसर आ जाएंगे आपको। कभी कभी आपको ये भी निकालना होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों टेंजेंट आपने निकाल ली और कहा जाएगा कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। मैं भी आपको हिंट दे रहा हूं और आपको अगर डाउट है तो आप मेरे ऐप पर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाओगे मेरे से परमिशन लेकर के। और उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे रहा हूं कि जब हमें दोनों लाइनों का स्लोप पता है तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपका कॉन्सेप्ट कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन बुकों में आरडी शर्मा तो शायद ही मिलेगा। ये मतलब एक तरह से मेरा रिसर्च है और ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैं अपने क्लासरूम में कराता हूँ रेगुलर बेसिस पर, चाहे वो ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन है, उनको ये मैं कराता हूँ। तो ये आप यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल भी डिटरमाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टाइप है। देखो सिंपली ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि स्टूडेंट्स आपके जो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है आप उसको डिफरेंशिएट करो और लाइन जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अभी हमने पढ़ा कि व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस then dy by dx is equal to 0, यानी slope is equal to 0. When a line is parallel to y axis, dy by dx is equal to 1 by 0. तो दोनों के हेल्प से आप इक्वेशन सॉल्व करके
आप पॉइंट निकाल सकते हो। तो ये सारे चीज मैं आपको हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन में आपको 18th बता दे रहा हूँ, थोड़ा ये डिफरेंट है और इनका जो सॉल्व करने का तरीका है वो भी डिफरेंट है, तो उससे बेहतर तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, शायद आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर आपका 18 है। इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। एंड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट विच इट कट एट x एक्सिस। तो पहले आपको पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट कैसे निकालोगे? सिंस दिस कर्व टेंजेंट आपका x एक्सिस पर कट कर रहा है, तो x एक्सिस पर आपको पता है कि पॉइंट x एक्सिस पर आपका जो y की वैल्यू होती है वो 0 होता है। x एक्सिस पर y का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो हम इसमें पहले पॉइंट निकालेंगे। फॉर पॉइंट हमारे को जो क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट विच इट कट द x एक्सिस। तो यानी कि सिंस इट कट द x एक्सिस therefore y is equal to 0। अब y is equal to 0 का मतलब हो गया x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ इसमें इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब डिनोमिनेटर तो क्रॉस होकर 0 हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस बिकम 0, राइट, x इज इक्वल टू 7। यानी कि पॉइंट आपको मिल गया, पॉइंट इज x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कोसेंट रूल पता होगा। मैं आपका यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेंट रूल के हिसाब से x माइनस 2 और x माइनस 3 डिनोमिनेटर में दोनों का कंबाइंड होल स्क्वायर हो जाएगा और प्रोडक्ट कोसेंट रूल लगा के डिफरेंशिएट करो। तो पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस माइनस न्यूमरेटर हमारा एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 तो x माइनस 3 और प्लस फर्स्ट एज इट इज तो सेकंड का डेरिवेटिव 1 यानी कि x माइनस 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के लिए ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटाकर आपको आगे करा रहा हूं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं प्लस में 6 और माइनस ये होगा 2x माइनस 5, उसको मल्टीप्लाई करोगे मतलब x माइनस 7 को आप 2x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ये ब्रैकेट में लिख लो और दूसरे ब्रैकेट में उसको लिखो 2x स्क्वायर माइनस 5x और 14 माइनस 19x प्लस 35 और अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैं इसमें सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको स्लोप चाहिए। आप सीधे x की वैल्यू 7 पुट करके स्लोप निकाल सकते हो। बस ये ब्रैकेट ओपन कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 19 माइनस 14x और माइनस का 29 और अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ स्लोप एट 7,0, हालांकि 0 का कोई रोल नहीं है, तो 7,0 पर आप स्लोप निकालने जा रहे हो, यानी कि आपको x की वैल्यू 7 पुट करनी है। तो माइनस का 49 प्लस 98 और x की तो वैल्यू डाल दी ना मैंने, और माइनस का 29 और अपॉन में 7 माइनस 2 5 into 4
4 होल स्क्वायर। तो 98 में से 49 और 29 आपको माइनस करना है, तो 49 और 29 कितना हो जाएगा? 50 और 20 70 78 प्लस 28 ऊपर है, यानी कि 28 और अपॉन में अच्छा नहीं सॉरी 400 7 अपॉन में 100 आपका स्लोप आ गया, और 7 अपॉन में 100 आपका स्लोप नहीं है। नहीं 20 आएगा ना ऊपर, 98 माइनस 78 20 आएगा। अच्छा 98 माइनस 78 20, तो 20 अपॉन में जो है, हाँ बिल्कुल अब सही है, 1 अपॉन में 20 आ गया। अब आपको पॉइंट मिल गया, 7,0 और स्लोप मिल गया 1 अपॉन में 20। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, यानी y माइनस y1 यानी कि 0 इज इक्वल टू m यानी 1 अपॉन में 20 x माइनस 7, यानी कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20 x माइनस 7, दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और कोई भी क्वेश्चन हो, देयर इज नो इशू, आपको ऐसे ही करना है। आपका जो एग्जाम्पल नंबर 19 है वो आपको मैं एक बार समझा दे रहा हूं, और एग्जाम्पल नंबर 20 समझा दे रहा हूं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन मिलेंगे। तो 19 एग्जाम्पल जो है उसको देखो, ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, आई थिंक सो। तो आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा कि 19 क्वेश्चन आपका, एग्जाम्पल नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, और मुझे आप बताओ कि 19 नंबर एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको 19 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों निकालनी है, और इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, और आपको पॉइंट भी गिवन है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व लिखो। यस, इक्वेशन ऑफ कर्व इज x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 अपॉन में 3 x का पावर 2/3 माइनस 1 यानी माइनस 1/3, 2/3 y का पावर 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3, और साथ में यहाँ पर dy बाई dx और आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 अपॉन में 3 y का पावर माइनस 1 अपॉन में 3 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 3 x का पावर माइनस 1 अपॉन में 3, 2/3 कैंसिल, तो dy बाई dx x माइनस ऑफ x का माइनस 1/3 अपॉन y का पावर माइनस 1। अब नेगेटिव पावर को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल कर दो, यानी माइनस ऑफ y का पावर 1/3 अपॉन x का पावर 1/3, यानी अगर आप x और y की वैल्यू 1 रखोगे तो ऑब्वियसली आपका -1 ही आ जाएगा, यानी कि स्लोप एट 1,1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 ही रहेगा। अब पॉइंट आपके पास 1 1 है, एंड यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पहले आपका आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1, और y1 का मतलब हो गया 1, m यानी कि -1, और x माइनस x1 यानी कि 1, ब्रैकेट ओपन कर दोगे, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो ये x अगर इधर आ जाएगा तो इक्वेशन आपका हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये आपका टेंजेंट का हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देता हूँ, थोड़ा सा चेंज है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x1, यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू ये +1 अब हो जाएगा, -1 जब रखोगे तो, और x माइनस 1 यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू x आपका हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये बहुत ही इजी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल आपका पैरामेट्रिक फॉर्मेट पर है, तो उस पैरामेट्रिक फॉर्म का बता दे रहा हूं, उसके बाद ये आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो भी आपको क्वेरीज है यू कैन आस्क मी एंड वेट फॉर द सेकेंड वीडियो ऑन दिस चैप्टर, दैट इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ 6.3। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन से ज्यादा हैं, तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। एक्चुअली में स्लोप होता है एम, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट में तो हमारे को सीधे सीधे एम आ गया फॉर्मूले के हिसाब से, और नॉर्मल वाले में वो -1 में एम होता है, क्योंकि टेंजेंट, हाँ, टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर -1 आता है। दिस इज द रीजन। तो इसलिए अगर हम टेंजेंट का स्लोप के जगह पर m लेते हैं तो नॉर्मल का स्लोप हमारा -1/m होता है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 20, जो कि पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x = a sin cube थीटा and y = b cos cube थीटा। b मतलब b cos cube t, सॉरी t वाला नहीं फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, and you have to find and you also given t = π/2। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट x और y की वैल्यू होती है, फिर dy/dx निकाल करके और उससे स्लोप निकालना होगा। तो अगर हम t की वैल्यू π/2 लेते हैं, when t = π/2, तो x की वैल्यू बता दो मुझे कितना होगा, a sin π/3 of π/2, यानी कि जो sin π/2 की जो वैल्यू होगी उसका क्यूब करेंगे और उसको a से मल्टीप्लाई, sin π/2 1 होता है, बिल्कुल सही, तो यानी x की वैल्यू a आ गया, और y = b cos क्यूब π/2, यानी कि जो cos π/2 की वैल्यू होगी उसका क्यूब करोगे, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल सही जवाब। तो 0 का क्यूब 0 होगा, यानी b आ गया, यानी कि सॉरी 0 आ गया, यानी हमें पॉइंट मिल गया a, 0। नाउ वी हैव टू फाइंड dx/dt and dy/dt, and on dividing we get dy/dx, that is dy/dt in upon में divided by dx/dt। तो अब आप एक एक की वैल्यू निकालो, dx/dt बता दो जल्दी से मुझे। तो a हमारा कांस्टेंट है, sin क्यूब का डेरिवेटिव 3 sin स्क्वायर t एंड sin का डेरिवेटिव cos t, dy/dt b 3 cos square t into sin, cos का डेरिवेटिव माइनस में होता है, तो इसलिए माइनस साइन t आ गया। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करके dy/dx निकालेंगे, तो dy/dt पहले, यानी कि -3b cos स्क्वायर t और sin t एंड डिवाइडेड बाय 3a sin स्क्वायर t cos t। पहले जो कट सकता है उसको कटाओ, और उसके बाद जो बचेगा उसमें हम t की वैल्यू पुट करेंगे। 3 हमारा कैंसिल हो रहा है, और एक साइन कैंसिल हो रहा है, एक कॉस कैंसिल हो रहा है, यानी कि -b cos t, cos t का मतलब हो गया cos π/2, और अपॉन में a sin π/2। मैंने यहाँ लिखा dy/dx at t = π/2, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यानी कि हमें स्लोप की वैल्यू मिल गई। आपको cos π/2 की वैल्यू पता है 0, और 0 अपॉन एनीथिंग, मैं कुछ 0, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, स्लोप की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब आप लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 = m x - x1, तो y - y1 और y1 is 0 = m is 0 और x - a, तो इधर तो 0 हो जाएगा, यानी कि y = 0 हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ऐसे ही आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे।
तो आ गया 9 टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हालांकि आप खुद ही करते बट मैं यहाँ हिंट दे रहा हूँ। y माइनस वाई वन माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस 0 माइनस 1 बाई 0 x माइनस a। तो देखो ये यहाँ नहीं, नॉट डिफाइन हम नहीं लिखेंगे, यही तो मेरा कहने का मतलब है। अगर आप नॉट डिफाइन लिख दोगे तो शायद इसको नॉट डिफाइन करके छोड़ सकते थे, लेकिन हाँ इसलिए जी 1 बाई 0 ही लिखो। माइनस यहाँ आ रहा है इसलिए माइनस आ गया। ये 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ 0 हो जाएगा और ये हो गया माइनस ऑफ x माइनस a। अब अगर हम ये देखें तो x माइनस a बराबर 0 यानी x इज इक्वल टू a। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया y बराबर 0 और आपको पता होना चाहिए कि y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस होता है और ये है x बराबर a। तो x बराबर a जो होगा वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ना कोई सा भी निकल सकता है, x भी निकल सकता है y भी निकल सकता है। हाँ तो कहने का मेरा मतलब है जैसा क्वेश्चन कह रहा होता है उसी के अकॉर्डिंगली हमें चलना होता है। तो ये आपका एग्जांपल्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया एंड आई होप कि मैं जितने भी इंफॉर्मेशन आपको पहले से देते जा रहा हूँ बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू विल फॉलो ऑन माई ऑल इंस्ट्रक्शन, माई ऑल रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम से मिले और मेरे ऐप को भी आप प्रमोट करो। जब आपका जो सहयोग होगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको जो है एजुकेशनल, हाँ एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि थोड़े ही दिनों में आपको डेली एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियोज मिलेगा जो आपको पढ़ने के लिए या आपको लाइफ में कुछ करने के लिए मोटिवेट करने में आपको बहुत बड़ा सहयोग करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।